students, welcome to Talking Textbook Keeping No Child Behind. हम लोगों ने हमारा heat chapter start कर दिया था and this is the lecture on. ठीक है, अब तक हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है टेम्परेचर, राइट, हीट एनर्जी क्या होती है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की. Then we go for the various types of thermometers. भाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं, डायरेक्ट थर्मोमीटर, और वो कितने तरीके का होता है. And then we decided the temperature scales. कितने तरीके के temperature scales होते हैं, like Celsius, Fahrenheit, Kelvin, right? उसके अंदर में how you are going to convert the temperature from one scale to the another. ये भी हम लोगों ने जो है कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is the mode of heat transfer. Like heat transfer कैसे होती है from one place to the another, right? तो उसमें से एक method जो है conduction, वो हम लोग आज मेनली डिस्कस करेंगे, और जो बाकी के जो प्रोसेसेस हैं कंडक्शन एंड रेडिएशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे कंडक्शन पे टुडे, एंड वी आर कवरिंग दिस टॉपिक फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, लाइक द स्कूल एग्जामिनेशन एंड द अदर. So basically you can definitely crack both of the examinations by just watching our lectures, and we are going to help you a lot in the process you have set for yourself, goals you have set for yourself. इस पूरे प्रोसेस में we are going to help you a lot. So just stay with us, study with us, right? If you want any DPP study material, you can access them through the Telegram channel. All you need to do is to write the code DPP07 on the Telegram app. जब इसे लिखते हैं तब आपको जो है पूरा जो अगर हमारा जो देख रहे हैं चैनल को आपको क्लियर हो जाएगा, and then you can join that, right? You can access the DPP study material. Now see, this is the team, alright, and ये जो team आप देख रहे हैं अपने screen पे, that is the team doing very much hard work for you all, so that you become able to crack the school examination as well as now, right? So basically we are very much doing hard work for you all, so that we can provide you the quality education from Koda, and you are able to crack all the goals you have set for yourself or all the examinations you want to do. Right, so basically that is our aim, and we are definitely doing very much hard. Now, जो चीज मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ वो बताना बहुत जरूरी है, राइट? तो देखो, ये मैं आपको बताती हूँ that you have to go on this website www.johnnytextbooks.in. आपको इस वेबसाइट पे जाना है. What you need to do is to write code, right? उस कोड को लिखने के लिए you should know the packages, right? देखो, full package and the test. ये दो तरीके के पैकेज आपको फुल पैकेज के अंदर you will be getting the study material, right? Comprehensive study. अब ये जो स्टडी मटेरियल होता है क्यों आपको हेल्प करेगा, कैसे आपको इसी तरीके से बनाया गया है कि अगर आप इसे स्टडी करते हैं तो आप स्कूल एग्जामिनेशन के सिलेबस को भी कवर अप कर लेंगे, साथ ही साथ आप ओलंपियाड्स में होने वाले क्वेश्चंस, उनका जो प्रोसेस होता है, उनका रिलेटेड होता है, सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. So basically you can go for both the examinations just by this study method, right? Next you will be getting the recording and live classes. Recording and live classes can help you with supplement जिसको आप जो है अपनी स्टडी मटेरियल से रिलेट कर सकते हो, right? Third thing, you will be getting the homework submission there. You will be doing the homework. We are going to give you, and then you are submitting us on the good questions, right? Next, the thing is for the you can say the bi-weekly quiz, right? The bi-weekly quiz जो होते हैं वो आपके एक वीक में 2 बार टेस्ट होते हैं. तो इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी आपके टेस्ट होंगे, एक वीक में आपको 2 बार टेस्ट देनी होगी. तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज वहां पे होनी चाहिए, तो ये आप स्टडी करते हैं, आप टेस्ट स्टडी करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको आपका फीडबैक मिलेगा दैट आप कौन से टॉपिक में पीछे हैं या फिर कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ये सभी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी. तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लॉन्ग जर्नी है. नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग यू द पीरियोडिक टेस्ट. पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो होते हैं वो किस चीज में आपका हेल्प करते हैं, वो ये कि है आप फाइनल एग्जामिनेशन जिसको आप फेस करने वाले हैं उसके पैटर्न से फैमिलियर करवा सकते हैं आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स का मेन एम ही यही है कि वो आपको फैमिलियर करवा सके, ठीक है, आपको टेंशन में मिल सके जो आपको चाहिए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, राइट? एंड वो इंपॉर्टेंट चीज है कितने लेवल होते हैं क्वेश्चन के, और यू कैन से किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्या कितने नंबर के क्वेश्चंस मिलने हैं, क्या कैसे वहां पे आप लोग को क्लियर करना है, लाइक हाउ टू do the examination and how to solve all the types of questions. ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट. तो ये सभी फीचर्स आपको फुल पैकेज में मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट स्पेसिफिक
गोल यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, राइट? कोई बहुत लंबा जर्नी होता है ना, आपको फाइनल एग्जामिनेशन क्रैक करना होता है, ओलंपियाड देना होता है, तो वो एक फाइनल जर्नी है जो आपको आप पूरे साल उसकी मेहनत करते हो। वजह से आपका जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपका मेहनत अगर होता है then you can definitely crack in an easy manner, and that's what these packages are for, right? And the next thing, जो next package है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, that is the foundation and olympiad के लिए test। तो इसका मतलब भाई आपको जो है क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाला है आपको। वहाँ पे रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस जो है उनका एक्सेस मिल जाएगा, एंड यू कैन बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज, राइट? आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, कैसे मिलेगा? बाय वीकली क्विज़ेस, और आपको क्या मिलेगा? पीरियोडिक टेस्ट। तो ये चीज आपको प्रोवाइड होगी, तो उसके बेसिस पे आप टेस्ट दे देकर खुद को पता कर सकते हो दैट वेयर यू स्टैंड और हाउ मच नॉलेज यू हैव, और कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? अब देखो, अगर आपको चाहिए डिस्काउंट और यू वांट कि भाई मेरी जो कॉस्ट है कम हो जाएगा, you can definitely write code, and that is the CY line. If you write this code CY line, you can get access to the 30% discount and on any package you buy from the document.in. Alright, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है that you want to know more about these packages, how these are implemented, और क्यों आपको इसमें लेना चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेरीज आपको पूछना है लाइक दैट, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 919549041111। You can call us on that number and you can definitely get all your queries resolved by that, right? अभी क्या आता है आपका promise. So you have to promise yourself that you will be taking the whole, you will be watching the whole lecture, and you will be taking proper notes, and you will be what revising on the daily basis. तो आपको रिवीजन भी करना है 15 मिनट से डे, राइट? अब मैं बोलना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, अब 15 मिनट से डे रिवाइज तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन रोजाना करना है, ठीक है? वन क्वेश्चन डेली आपको एम बनाना है that you are going to solve that one question daily. It should be a hard one, ठीक है? क्यों hard one होना चाहिए? Because अगर आप hard question को solve करोगे तो उसको डील करोगे इस तरीके से, आप पूरे दिन उसके बारे में सोचोगे, तो बेसिकली आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्लियर सेटअप होगा, how you are going to, you can say किस तरीके से आप उसका अप्रोच करना चाहोगे, क्या उसमें ऐसा डिफिकल्ट लेवल है, उस क्वेश्चन को क्यों डिफिकल्ट बनाया गया है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप सिर्फ वन क्वेश्चन डे यूज करते हो, वो भी हार्ड वाला, ये इजी वाला मत करना, इजी वाला तो हो गया। अब देखो, हम जो अपना चैप्टर कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज द कंडक्शन प्रोसेस, जो हम लोग देख रहे हैं हीट का, ठीक है? उसको स्टार्ट करते हैं। सो देयर कैन बी वेरियस वेज, जहां से मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, किसकी वजह से और किस चीज के लिए कि भाई हीट एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है, राइट? वो उसको ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, राइट? ये हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देयर कैन बी थ्री। नंबर 1 इज द कंडक्शन, so let's go for that, ठीक है? जो आपका कंडक्शन प्रोसेस है उसको देखते हैं। पहले हम मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को देखेंगे। देयर कैन बी थ्री मेथड्स। नंबर 1 इज द कंडक्शन, number 2 is the convection, and number 3 is the radiation. Alright, so these can be three ways जहां से जो है heat transfer हो सके, उनकी हेल्प से heat transfer हो सकती है। नंबर 1 कंडक्शन, ये कंडक्शन आज हम पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। कंडक्शन का मतलब है कि भाई जैसे आप ये देखो, यहाँ पे कंडक्शन क्या क्या हो रहा है, कंडक्शन इज लाइक ये जो हीट एनर्जी है वो ये वैसे ले रहा है, ठीक है? हीट एनर्जी वैसे ले रहा है। अब जो वेसल का जो मटेरियल है, जिस मेटल का ये बना हुआ है, वो क्या करेगा, हीट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट? और उसकी वजह से क्या होगा, वो खाने तक पहुंच जाएगा, राइट? तो इसने क्या किया, हीट एनर्जी को लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया। सो दैट्स व्हाट द कंडक्शन इज। मटेरियल का जो मीडियम है, और यू कैन से कोई भी मीडियम है और कोई भी मेटल का मीडियम है, ऑलराइट, तो ये क्या करेंगे, हीट एनर्जी को लेके अंदर पास ऑन की एनर्जी टू अनदर, राइट? तो बेसिकली कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन द एनर्जी by the molecules of any medium, right? या फिर एक अच्छा मीडियम जो ये काम कर सकते हैं, राइट? सेकंड प्रोसेस यू कैन सी द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है इस कंटेनर में जो खाना है उससे। नाउ सी क्या होता है, हमें ये बात पता है कि जब कभी हीट एनर्जी दी जाती है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी को लेंगे एंड दे मूव इन द अपर डायरेक्शन। अब वो पानी क्यों मतलब उस हीट एनर्जी को लेकर वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर आ गए। अब क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गए, राइट? तो उसकी जगह पे
बाकी साइड्स का जो कोल्ड वाटर है या फिर लेस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा। अब वो क्या होगा, वो भी क्या करेगा, हीट एनर्जी लेगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल एंड इट मूव्स अपवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पर मीडियम मूव कर रहा है, राइट। जो वाटर है वो एक तरीके से मीडियम है एंड इट कंडक्टिंग द हीट हाउ वेसल से, जो वेसल का बेस है वहां से हीट एनर्जी लेता है एंड इट मूव्स फॉरवर्ड। तो बेसिकली जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग, दे आर टेकिंग एनर्जी विद देम। So that's how the energy went from one place to the another. Alright, तो ये प्रोसेस होती है कंडक्शन। The third one is the radiation, जो आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। और रेडिएशन का मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दैट रेडिएशन जो होता है, इसी रेडिएशन की मेथड की वजह से, मतलब ड्यू टू दिस मेथड ओनली वी आर गेटिंग द हीट एनर्जी ऑफ द सन। बिकॉज देखो सन से लेके हमारे अर्थ तक जो हीट एनर्जी आती है वो हीट एनर्जी यहाँ तक पहुंचने के लिए इट हैज टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड यू डू नो दैट सन और अर्थ के बीच में देयर इज फ्रिक्शन, राइट। तो बेसिकली वी कैन से दैट अगर सन से हीट एनर्जी अर्थ तक आती है तो वो बिना किसी मीडियम के आती है, दैट मींस इस रेडिएशन प्रोसेस को होने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम से ऐसा हो सकता है, राइट, यानी वैक्यूम से भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये रेडिएशन का प्रोसेस है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये भी नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारा मेन जो फोकस है वो कंडक्शन पे बेस है और एक्चुअली आज मच फोकस है हमारा कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन में मेनली क्या होता है, कंडक्शन होता है कि जो मॉलिक्यूल्स वो हीट एनर्जी ले लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी ले लेंगे एंड दे पास ऑन द एनर्जी टू देयर फ्रेंड्स और द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं, खुद नहीं जाते, ठीक है, तो दे आर दे डू नॉट मूव, तो वही तो मैं कहते हैं एंड दे पास ऑन द एनर्जी। So that's how क्या होता है, एक पूरे मीडियम में जो है एनर्जी पास ऑन होती है और वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। That process is known as the conduction. Alright, you can see heat is transferred by the process of conduction when bodies at different temperatures are in direct or indirect physical contact without the actual movement of medium. एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम नहीं हो रहा है, विदाउट दी मूवमेंट ऑफ एक्चुअल मीडियम। मतलब अगर आप देखें तो मीडियम अगर लेट्स से जो मीडियम है वो कोई भी आयरन का रॉड है, मेटल का कोई वेसल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या आप खुद सोचो, क्या आयरन रॉड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं? नहीं, वो वहीं रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मीडियम मूव नहीं करता, उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, बट दे जस्ट पास ऑन द एनर्जी और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ही मैं क्या करूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी बार बार आपको। अब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है। जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जहां पर एनर्जी और बहुत कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई इस जगह पे जो इसका टेंपरेचर है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू से यहाँ पे भाई लो टेंपरेचर, ठीक है। तो जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स आप देख रहे हैं वो लो टेंपरेचर के पार्टिकल्स हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है। और जो ये रेड कलर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, इस मोमबत्ती की लौ से क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को लेते हैं, रेड बन जाता है बिकॉज़ इट हैवी एनर्जी, राइट। अब उनके पास जब एनर्जी आ जाती है तो स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं। जब वो वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं फिर वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को पास ऑन कर देते हैं एनर्जी। अब इसके बगल वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं बिकॉज़ दे गेट एनर्जी एंड दे पास ऑन टू द अनदर वन। और ऐसे जो है प्रोसेस चलते रहती है, पूरे इस एंड तक ही जो है हीट एनर्जी पहुंच जाती है। तो देखो हीट एनर्जी ने यहां से लेके यहां तक ट्रैवल कर लिया और देखो मीडियम के पार्टिकल्स अपने अपनी जगह पे हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, दे डू नॉट मूव, राइट। तो मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, एक्चुअली में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होती है, ठीक है। ये बात हमको जो है इसमें ध्यान में रखनी है। ये वाला पोजीशन आप हाई टेंपरेचर पे मान सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलते जा रही है, तो ये कहते हैं हीट एनर्जी दे इट इंक्रीजेस द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है तो टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट है हाई टेंपरेचर पे, ये पॉइंट है लो टेंपरेचर पे। मैंने आपको बताया था कि हीट एनर्जी हमेशा कहां से कहां जाती है, हाई टेंपरेचर वाले पॉइंट से लो टेंपरेचर वाले पॉइंट की तरफ। तो ये चीज आपको जो है बहुत राइट। अब देखो तो ध्यान से देखो कि किस तरीके से हीट एनर्जी धीरे धीरे मूव ऑन पास ऑन होते लो टेंपरेचर तक चले जाती है, ठीक है। और फिर लो वाला लो टेंपरेचर फिर लो नहीं रह जाएगा, वो भी फिर हाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कब तक होता है,
जब तक कि दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, ठीक है, जब तक कि दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए ऐसा तब तक होता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, ठीक है, हाउ द कंडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन और हाउ डज इट वर्क, ये चीज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंडक्शन प्रोसेस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं एंड दैट एग्जांपल इज अ रॉड। क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड हीट कर रहे हैं रॉड को, आयरन रॉड ले सकते हो, फिर मेटल का रॉड ले सकते हो, ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं। अब वो क्या होगा, एक हैंड हमने क्या किया, फायर को रखा ताकि हमको हीट एनर्जी मिले। व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग ऑन, किस तरीके से हीट एनर्जी एक हैंड से दूसरे हैंड यानी we can say hotter and say cool and तक किस तरीके से हीट एनर्जी पास ऑन होगी, वो मैथड होगा कंडक्शन का। तो अब देखो ये है हीट एनर्जी, पहले कितने वो डायरेक्ट बात है, यहाँ पे फायर है और यहाँ पे उसका फर्स्ट एंड है, तो यहाँ वाले एंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे या एटम्स होंगे उन सबको एनर्जी मिलेगी एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी दे विल गेट द एनर्जी, इससे उनका टेंपरेचर बढ़ जाएगा और जैसे ही उनका टेंपरेचर बढ़ जाएगा दे स्टार्ट मूविंग बिकॉज़ दे हैव सो मच एनर्जी इन देम। और क्योंकि जब आपको भी ये बात पता है कि जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं, लाइक मुंह का कर दो, ये डालो, ये कर दो, सफाई करो, पूरा एनर्जी के साथ हम सारे काम करते हैं, राइट। यही प्रोसेस है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब कभी एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं, एनर्जेटिक कि भाई कोई भी काम है हम फटाफट से कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती तो हम बीपी लो, हमें लग रहा है आराम कर रहे हैं, नहीं करना है, हमको बैठे रहना है, तो ये है लो एनर्जी का वी कैन से कि एक एग्जांपल कि भाई जब लो एनर्जी होता है तो ऐसा होता है। अब जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को, इस एक एटम के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली तो इससे क्या होगा, इससे होगा हमको एनर्जी मिल गई, दे बी एक्साइटेड, और जब वो एक्साइट हो जाते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, अब अपने प्लेस पे हैं, ठीक है। सॉलिड का आप जानते ही हैं कि क्या होता है, बहुत ही पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, मोशन करें, ऑसिलेटरी मोशन करने लगते हैं, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है, अब क्योंकि जगह तो है नहीं तो दे कोलाइड विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, अपने नेबर मॉलिक्यूल्स से टकरा जाते हैं एंड इन दैट प्रोसेस क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी जो है आगे वाले पार्टिकल्स को पास ऑन करते हैं, यहाँ से एनर्जी लेते हैं और आगे आने वाले जो मॉलिक्यूल्स कर देते हैं, एनर्जी लेते हैं पास ऑन करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, क्योंकि नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है so they start vibrating, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, बहुत एक्साइट हो जाएंगे because they get the energy and they pass on the energy to another one, so that's how energy एक place से move करती हुई जा रही है but molecules से हो रहे हैं, molecules अपनी ही जगह पे रहते हैं, right। तो basically क्या होता है, अपनी ही जगह पे रहते हैं and the heat और you can say molecules से energy pass on करते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स का एक और यहाँ पे मेन फायदा होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं और वो कंडक्टर्स में होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे अपनी जगह पे फिक्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जो फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कोलाइड करते हैं, एनर्जी पास ऑन कर देते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं एंड दे पास ऑन टू द अनदर वन आफ्टर ट्रैवलिंग समथिंग, so basically they carry out the energy and they give it to the another one, तो एक पासिंग ही वहां चल रहा है और एक पासिंग ही फिक्स्ड पार्टिकल्स में चल रहा है, तो दैट्स व्हाई बहुत जल्दी जल्दी हीट एनर्जी क्या हो जाती है, आगे चली जाती है विदाउट द एक्चुअल यू कैन से मूवमेंट ऑफ द मीडियम, के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे फिर भी एनर्जी पास ऑन हो रही है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, when the molecules of the rod gets heat energy they start oscillating about their fixed position, अपने fixed position पे बैठे हुए उनको क्या होने लगता है, उनको ऑसिलेशन जो है वो प्रोसेस करने लगता है, ऑसिलेशन मोशन करने लगते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करने लगते हैं बिकॉज़ दे गेट हीट एनर्जी, उनको अब एनर्जी मिल गई है, क्योंकि एनर्जी मिल गई है दे फील एक्साइटेड एंड दे ऑलवेज मूव्स अराउंड लाइक मोशन यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, और ऐसा कब होता है, जब हम उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, एज द मॉलिक्यूल्स एट वन एंड गेट्स हीटेड, अब एक एंड पे हीट अप हो गए, वहां पे उनको एनर्जी मिल गई,
they gain kinetic energy and start oscillating vigorously. वो क्या होता है एनर्जी होता है अब उसी एनर्जी का उनके पास एनर्जी है तो they feel excited they start moving they gain the kinetic energy और वो क्या करते हैं बहुत ही vigorously बहुत तेज मोशन करने लगते हैं तो जब वो ऐसा करते हैं they always pass on the energy by what वो पहले से तो वेट कर रही है तो they pass on the energy because ऐसा कंडीशन कनेक्ट करता है टकरा जाते हैं अपने नेबर मॉलिक्यूल से और जब वो अपने नेबर मॉलिक्यूल से टकरा जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को पास ऑन कर देते हैं so they collide with the neighboring molecules and transfer the extra energy to them तो क्या करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं so they share the energy right वो शेयर भी जानते हैं then अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अब उनको एनर्जी मिलती है they gain kinetic energy and transfer it to their neighboring molecules वापस उनको kinetic energy जो है मिल गई और उन्होंने अपने neighboring molecules को pass on कर दिया so that is the process one by one they are passing on the energy to the another molecule right तो इस तरीके से अपने neighbors को pass on करते वो पूरे उसको pass on करते राइट अब देखो इस तरीके से इस पूरे इस मैनर में you can definitely say that कि भाई in this way heat is transmitted from one molecule to the next एक molecule से next molecule को क्या मिल गया एक process मिल गया एक molecule से अगले molecule पर एनर्जी फिर इस molecule से अगले molecule तक एनर्जी चले जाएगी राइट down the whole rod इसी तरह पूरे rod में जो है एनर्जी पास ऑन होती रहती है without the molecules actually moving from their position अपने position से molecules move नहीं करते right so that's how they are going to transfer the energy right free electrons का भी इसमें इन्वॉल्व रहता है this process by which heat travels in solid is called conduction ये process जिसकी हेल्प से जो है heat एनर्जी ट्रैवल करती है कि सॉलिड्स के अंदर इसमें मतलब तो कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है द नीड ऑफ हीलियम राइट कंडक्शन प्रोसेस को होने के लिए हीलियम चाहिए ताकि उसकी जो पॉइंट्स है या ये आप उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं कॉन्वर्ट हो राइट तो अभी आपको क्या करना है इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम इनको नोट करो बता सकते ठीक है तो ये है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो ऐसे पॉइंट्स को तुमको याद रखना बहुत जरूरी है लेट्स टॉक अबाउट दोस पॉइंट्स ठीक है उन पॉइंट्स को जो है हम बातें करते हैं तो नंबर 1 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है और यू शुड रिमेंबर बाय द टाइम मैं ये क्यों बोल रही हूं कि तुम क्यों याद रखना है बिकॉज़ अभी तो हमने सिर्फ कंडक्शन पढ़ा है जब हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में ठीक है तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तो वन बाय वन हम सब स्टडी करेंगे और सभी पॉइंट्स को क्लियर आउट करेंगे तो नंबर 1 थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू रिमेंबर इज दैट by conduction process the molecules या फिर particles passes the energy to their neighbors कंडक्शन का प्रोसेस में क्या होता है मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेते हैं एंड दे पास ऑन दे डू द शेयरिंग गेम राइट so they share and they share so basically वो एनर्जी लेते हैं and they share it with the neighboring particles or you can see the pass they pass on to the neighboring particles right so they give the extra energy लेते हैं and they pass on एनर्जी लेते हैं and they pass on ठीक है तो इस तरीके से हीट एनर्जी क्या हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है राइट बाय द कंडक्शन नेक्स्ट अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखना है these particles do not move from one place to the another do not move from one place to another they just pass on the energy given to them right वो क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खुद को जो एनर्जी मिली है वो पास वो नहीं जा रहे हैं they just do the motion and they sit on their place वो जो मोशन कर रहा है वो अपनी पोजीशन के भी आसपास कर रहा है राइट दे आर नॉट मूविंग एट ऑल ठीक है अपना जगह छोड़ के कहीं नहीं चले जा
छोड़ दी हाथ की वहां तक एनर्जी देके आए वापस आ गया, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या करते हैं अपनी सीट पे बैठे रहते हैं बल्कि पास ऑन की एनर्जी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, particles get their energy, ठीक है, उनको एनर्जी मिलती है, they vibrate about their mean position, वो अपनी ही mean position you can say जो उनका खुद का position है, fixed position, that is their mean position, वो अपनी ही mean position पर vibrate करते हैं, right, and they pass on the energy to another particle. So इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, medium के particles ही medium को बनाते हैं, तो एक्चुअली में पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, सो वी कैन से वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं दैट मीडियम मूव नहीं करता इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन के प्रोसेस में मीडियम मूव नहीं करता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीडियम डू नॉट मूव, ये साल में आप लगा देते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग को समझना है, does medium is required for the transfer of पहली बात तो भाई मीडियम मूव नहीं करता, और इससे साबित हो रहा है कि भाई कंडक्शन की प्रोसेस के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है, अगर एक मीडियम वहां नहीं हो तो कंडक्शन की प्रोसेस को हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे मीडियम जो है वो चाहिए चाहिए एंड उसके बावजूद भी मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो साफ साफ जो है, अब हमको बोल सकते हैं कि अब हमको जो है ये प्रोसेस पता चल गई है कि भाई एक मूव कर रहे हैं बट दे नीड समथिंग मीडियम, लाइक मीडियम चाहिए जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह की ट्रांसफर हो सके बाय द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम, राइट। इसकी वजह से हम अगर कंडक्शन का प्रोसेस वैक्यूम में करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पे तो पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे मीडियम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, मीडियम नहीं है, एनर्जी पास ऑन नहीं होगी, तो कंडक्शन की प्रोसेस से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह वैक्यूम में तो नहीं जाती, तो ये चीजें कुछ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ भी इस पॉइंट को भी जो है सम अप कर सकते हैं, तो दिस पॉइंट एंड ये तीन पॉइंट और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, हमें कंडक्शन की प्रोसेस को समझने में हेल्प करेंगे, तो यू शुड डेफिनेटली नोट डाउन, ठीक है, इनको फटाफट से नोट कर लो। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स थे ना, ये सबके सब आपको रिमाइंड कंडक्शन की प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे अभी तो हमने आयरन रॉड को जो है किया, तो हमें पता चला कि भाई एक पॉइंट से जो एक ऐसा एंड है जो कि बहुत गर्म है क्योंकि वो उसमें रखा हुआ है फायर में है, दूसरा एंड जहां से हमने आयरन रॉड को पकड़ा हुआ है थोड़ी देर में वो भी गर्म हो जाता है, तो मतलब इससे हम साबित कर सकते हैं कि हीट एनर्जी वहां वाले पॉइंट से इस जो ठंडा वाला एंड है वहां तक पहुंच गई, राइट। लेकिन अगर यही काम हम एक वुडन का स्थिति है, ठीक है, और उसको अगर हम यही काम करवाएं, उसको एक फायर के अंदर दिया करेंगे, राइट, एंड हम उस एक दूसरे एंड को, ठीक है, होल्डर एंड को पकड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितनी देर पकड़े रहो तुम पहुंचेगी नहीं, बिकॉज मटेरियल डिफरेंट है, उसका मटेरियल डिफरेंट है, मेटल का या आयरन रॉड का मटेरियल डिफरेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जितने भी मटेरियल्स थे उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक होते हैं गुड कंडक्टर्स और एक होते हैं बैड कंडक्टर्स। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पास ऑन करते हैं, जैसे कि आयरन रॉड उसमें हीट एनर्जी को पास ऑन कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, तो दीज आर नोन एज द गुड कंडक्टर, अच्छे लोग, ठीक है, अच्छे कंडक्टर। और जो दूसरा कंडक्टर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, हीट एनर्जी पास ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको बाद में भी वो एंड जो है वो कोल्डर ही फील होगा, ठीक है, तो क्या हुआ, एनर्जी ऊपर पहुंची नहीं, एंड तक पहुंची नहीं, तो बेसिकली वो क्या हो गया, बैड कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैम, गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर जिनको शेयरिंग आती है, जो हीट एनर्जी को शेयर करते हैं,
ऐसे कंडक्टर्स में तो हम बोलेंगे द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच हीट एनर्जी कैन इजीली फ्लो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से हीट एनर्जी फ्लो हो सके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सके, उन सब्सटेंसेस को हमने क्या बोल दिया है, गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर। ठीक है, तो उनको हमने बोल दिया है गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर, आती है वो एनर्जी शेयर कर देते हैं, हम लोग एनर्जी। ऐसे ही कुछ कंडक्टर्स हैं जिन्हें हम बैड कंडक्टर बोलते हैं, वो गंदे कंडक्टर होते हैं और वो शेयर नहीं जानते हैं, और वो क्या करते हैं, सारी एनर्जी खुद के पास ही रखते हैं, उनके पास ही रखते हैं, पास ऑन नहीं करते, तो पास ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके पास उसको एनर्जी दूसरी कर रहे वापस चल जाता है, देखो ये तो होता है, वो पूरा वापस चल जाते हैं। बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू दैट, उनके अंदर से हीट एनर्जी वापस नहीं हुए हैं, तो दे आर नोन फॉर दैट कंडक्टर नहीं है। ऐसे दो कंडक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं। अब हम एग्जांपल्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज अ गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर के अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो होते हैं मेटल्स, और हम जनरल बात करें तो मेटल्स जो है गुड कंडक्टर, उसमें से ही सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है, उसके अंदर सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, फिर आता है कॉपर, फिर आता है एल्यूमिनियम, और क्योंकि सिल्वर महंगा होता है इसी वजह से हम सिल्वर को ज्यादा यूज करते हैं, कि वरना अच्छा कंडक्टर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, वो जो है वो भी अच्छे कंडक्टर है, सिल्वर जितने नहीं पर अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं वो या तो कॉपर से बने हैं या फिर एल्यूमिनियम। कॉपर से कॉपर दोनों जनरल होता है, कॉपर कॉमन होता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी केबल आप यूज कर रहे हो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है, तो वो सभी भी जो भी वायर्स हैं वो सभी कॉपर वायर हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हम तो पता चलता है मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं, फिर भी एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होता है और उसका नाम है ग्रेफाइट। तो ये जो ग्रेफाइट, जानते हो ग्रेफाइट, तुम्हारी पेंसिल की है, तुम्हें जिससे लिखते हो तो ग्रेफाइट होता है, तो वो ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो ये भी बढ़िया कंडक्ट करता है, ठीक है। अब देखो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पता चल गया, उसके अलावा ये जो मेटल गुड कंडक्टर है, ये किसके दम पे गुड कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दम पे, उनके अंदर ये एबिलिटी कि वो एनर्जी पास ऑन कर सके, हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, उनके अंदर जो एबिलिटी है उसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो एबिलिटी है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो उनकी जो हाई कंडक्टिविटी होती है, ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, वो किसकी बेस, वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के दम पे, ठीक है, उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को पास ऑन कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी वजह से जो ये मैटर्स हैं बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, पास ऑन कर देते हैं, राइट, सो दे मूव एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स व्हाई हीट मैटर्स। अब हम बात करते हैं, पहले तो इनको यूज करो, फिर हम देखेंगे बैड कंडक्टर्स के बारे में, उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। चलो अब हम बैड कंडक्टर्स की बात करते हैं कि भाई बैड कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं, तो शेड के बारे में बताओ। देखो वो होते हैं ग्लास, गोल्ड, क्ले, एस्बेस्टॉस, रबर, प्लास्टिक, वैक्स, ये सब के सब कौन होते हैं, पुअर, they do not know the meaning of sharing, वो नहीं करते शेयर, वो सब सेल्फिश है, तो क्या करते हैं, एनर्जी अपनी जगह पे रखते हैं, अपनी पॉइंट पे रखते हैं, आगे पास नहीं करते, अपनी पास तो जब अपने पास रखते हैं क्योंकि ऑप्शन जाता है, आगे पास नहीं करते तो वो कंडक्टर के रह जाता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं वो कुछ एग्जांपल्स में
इसमें रबर भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, रबर प्लास्टिक ज्यादा यूज में आता है, ये भी ज्यादा यूज में आता है। अब देखो सारे के सारे लिक्विड्स पुअर कंडक्टर किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, और मरकरी को छोड़ के क्यों, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि भाई मरकरी तो थर्मोमीटर में यूज होती है, वो तो बहुत बढ़िया कंडक्टर होती है, कितनी अच्छी कंडक्टर होती है, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो बेसिकली हीटिंग देना चाहते हैं गुड कंडक्टर, राइट। अब देखो तुम नेक्स्ट, सारी गैसेस ऑल गैसेस आर पुअर कंडक्टर, तो बंदे पास होने वाला ये हीटिंग देती है। ओके, अब देखो क्या हुआ, नॉन मैटर्स ऑर्गेनिक ये भी बैड है, इन्हें भी कुछ भी शेयरिंग के बारे में नहीं पता। अब ये सब बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। क्यों उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा कि भाई हीट एनर्जी को ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कम पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा पास ऑन भी नहीं कर पाते, और क्या हो जाता है, वो एक जगह से जल जाते हैं, मैंने भी कहते हैं हीट एनर्जी को जल जाते हैं, वो दूसरा एंड तक एनर्जी पहुंचाते नहीं है, अगर वो जाते, अगर वो शेयर करते तो वो जलने का, राइट। अब देखो क्या होता है, हीट एनर्जी ज्यादातर जा नहीं पाती, ट्रांसफर नहीं हो पाती, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाते, तो क्या होता है वहां पे पुअर कंडक्टर का उसको है जो उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब एप्लीकेशन देखो कि गुड कंडक्टर की बढ़िया एप्लीकेशन क्या है, हमारे कुकिंग वेसल्स क्या करते हैं, कुकिंग वेसल वो क्या करते हैं कि जहां से हमको फायर देते हैं, तो क्या करें, हीट एनर्जी लेते हैं, ने पास ऑन दैट टू दी फूड, तो हमारा जो भी फूड है उस वेसल के अंदर है वो कुक हो जाता है, बिकॉज़ वी गेट द हीट एनर्जी, राइट। तो बेसिकली मैटर क्या कर रहा है, हमारा खाना बनाने में, राइट, वी गेट द एनर्जी, दे पास ऑन द एनर्जी टू द फूड एंड द फूड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गुड कंडक्टर की निशानी, उससे अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी यूज होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है, क्या होता है, जैसे इसको एनर्जी मिलती है ये ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने पे आपको एग्जैक्ट टेंपरेचर दिखा देता है, क्योंकि आपका बॉडी कितना है, तो ये भी इसमें गुड कंडक्टर का यूज है। अब देखो थर्ड वन, जो कूलिंग कॉइल्स होती हैं रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में, और भी बहुत बहुत जगह होती हैं, तो ये जो कूलिंग कॉइल्स होती है वो क्या करती है, हीट एनर्जी को लेके बाहर चलती है, राइट। दे टेक द हीट एनर्जी एंड दे जस्ट पुट देम आउट, तो क्या होता है, पूरा कूल है, राइट। तो ये क्या कर रही है, तो कर रही हमारे कूल करने में मदद कर रही है, राइट। देखो ये सब एप्लीकेशन, इसके अलावा भी बहुत 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 सारे एप्लीकेशन होते हैं गुड कंडक्टर, लेकिन अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बैड कंडक्टर की, भाई उसका फायदा हम कैसे उठाते हैं, बैड कंडक्टर को भी हम यूज करते हैं, जैसे कि वुलन क्लोथ्स। अब ये वुलन क्लोथ क्यों, बिकॉज़ जो वूल होती है वो क्या करती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। बेसिकली क्या हो रहा है, बैड कंडक्टर है, हीट को आगे नहीं जाने देती, तो क्या करती है, जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है वो जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को वो ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, स्वेटर के अंदर से बाहर नहीं जाने देती, राइट। तो जो वूल है वो क्या कर रहा है, हीट को पास नहीं कर रहा है, वो हीट को अंदर ही रख रहा है, तो यू फील वार्म। बाकी जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, बहुत ठंडा है, बिकॉज़ ठंड हो रही है, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या हुआ है, दैट यहाँ पे हमने दैट कंडक्टर को यूज करके खुद को वार्म, राइट। तो दिस इज एन एप्लीकेशन जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि दैट कंडक्टर भी काफी काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कुकिंग वेसल्स के हैंडल, जो हैंडल होते हैं वो क्या होते हैं, माटी के नहीं होते, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई छोटी होती है, प्लास्टिक की होती है, रबर की होती है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमें हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं गिरे पर हम इजीली तो वैसे हमको हैंडल, तो वी गेट दैट हैंडल टू हैंडल विद हीट एनर्जी पूरे वैसे को मिल रही है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी पूरे वैसे को मिल रही है, इसको कुक हो रहा है पूरा सामान, ठीक है, पूरा हमारा हो रहा है, लेकिन हीट एनर्जी डायरेक्ट से ज्यादा हैंडल हो जाएगा। अब क्योंकि हैंडल को हमको पकड़ना है, तो इतना फील हम लोग को चलना नहीं है, हम लोग को क्या नहीं करना है, हमको बढ़ने है, तो वी गेट दैट हैंडल। और जब ये हैंडल मिलते हैं एक्चुअली में किसी रबर के मिलते हैं या प्लास्टिक के, तो क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को पास नहीं करते, पहले डू नॉट पास ऑन द हीट एनर्जी, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पास ऑन नहीं कर रहे, बैड कंडक्शन इसका फायदा किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, बैड कंडक्टर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या है बढ़िया कर बताने, तो ऐसे करके न जाने कितने सारे स्विचेस को देखते हैं, खत्म नहीं हो सकती क्योंकि बैड कंडक्टर, लेकिन फिर भी ऐसे
में बहुत 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 सारी चीजें आपको मिलेंगी अपने आसपास, जहाँ पे तुम बैड कंडक्टर के एप्लीकेशन को देख पाओगे, जहाँ पे तुम गुड कंडक्टर के एप्लीकेशन को देख पाओगे, और तुम ये देख पाओगे जो भी सब्सटेंसेस तुम्हारे आसपास, ठीक है, उन सभी का कोई ना कोई मतलब करते ही करते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, राइट। हम सभी का जो है फायदा होगा, जो को अपना काम निकालना होता है, राइट। देखो, हमने जो आज का प्रोसेस पढ़ा है कंडक्शन, आपको क्या चीजें रिमेंबर करनी है कंडक्शन को लेकर, दैट मीडियम मूव नहीं करता, राइट। मीडियम खुद मूव नहीं करता, वो हीट एनर्जी को पास ऑन करता है। सेकंड थिंग व्हाट यू शुड नोटिंग डाउन इज दैट कि जो मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, एंड देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम कंडक्शन की प्रोसेस को होने के लिए, कंडक्शन की प्रोसेस के तरीके से अगर हम हीट एनर्जी को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम, ठीक है, देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम। तो आपको क्या करना है, ये दो बातें ध्यान रखनी है, ये कंडक्शन की प्रोसेस। Alright, so that was it in this lecture. Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and we will be studying the connection and the regulation process in the next lecture. So do always do that. You should not forget to click on the bell icon ताकि क्या हो, आपको सारे के सारे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। Thank you so much for watching the video. Do revise it and do that one question really